Good morning, everybody. Today we are going to start with AS-9, which is revenue recognition. Last वीडियो में हमने बात की थी AS-7 की और उसका respective previous year question भी देखा था, which is this one: explain the significance of accounting standard 7. In this video, we are going to start with AS-9. AS-9 is again a fairly important accounting standard. इसके पिछले साल में क्वेश्चन भी आए हैं जो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, राइट. वी विल लुक इनटू देम इनटू डिटेल आफ्टर वी स्टडी द कंटेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद AS-9. सो AS-9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन. नाम से ही समझ आता है, ये हमें बताएगा कि कब हमें टाइमिंग बताएगा कि कब हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कब वी हैव टू पोस्टपोन द रिकॉग्निशन, राइट. So AS-9 deals with the basis for revenue recognition arising in the ordinary course of business in the statement of P&L. Okay, अब revenue recognition पढ़ने से पहले we need to study that what exactly is a revenue, what do we count, what do we take in revenue. तो revenue is the gross inflow of cash या receivables या फिर other consideration arising from sale of goods, rendering of services, used by others of enterprise resources yielding interest, royalties and dividend. ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें भी डिविडेंड आपके रेवेन्यू का पार्ट बनती हैं. अगर कोई और हम रिसोर्सेज यूज़ करें एंड इट इज yielding us interest, royalties and dividend, then it is also counted under revenue. अब AS-9 जो जिसकी चीज़ के लिए स्पेसिफिक AS है उनको काउंट नहीं करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज वी हैव रिस्पेक्टिव IND-AS and AS for each of the following. Now if we talk about sale of goods, the revenue from sale of goods should be recognized when the requirements as to performance is set out in the standard are satisfied. तो जब जो भी स्टैंडर्ड में दिया है वो हो जाएगा तब वी विल रिकॉग्नाइज द सेल ऑफ गुड्स. हम क्या दिया है IND-AS में, लेट्स सी. एज पर AS-9, performance should be regarded being achieved when seller of the goods has transferred to the buyer the property of the goods for a price, or all significant risk and rewards of the ownership has been transferred to the buyer and the seller retains no longer effective control of the goods. No significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of the goods. दो चीज़ें, बल्कि दो चीज़ों में थोड़ी और भी अंदर चीज़ें हैं. सबसे पहले तो जो सेलर है उसने गुड्स की प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र कर दिया फॉर अ प्राइस, नॉट इन फ्री बट फॉर अ प्राइस. या फिर मतलब ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि जो भी सारे रिस्क हैं, रिवॉर्ड हैं ओनरशिप के, वो भी बायर को ट्रांसफ़र हो गया और अब सेलर का कोई भी गुड्स पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहा है. और ये जो पैसा है, ये जो प्राइस है, इसमें अब कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है. If these two conditions are satisfied, we have transferred the goods to the buyer for a price which is not having any significant uncertainty, and now he is the bearer of all the risk, reward, and seller has no control over the goods transferred. Then we will say कि sale हो चुकी है and then we can recognize the sale of goods. अब हम बात करते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की. The revenue from service transactions is usually recognized as service performed. कब? अब इसमें दो मेथड हैं, एक है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, एक है कंप्लीटेड सर्विस मेथड. अब बात समझो, अगर आप मान लो ऑडिट का काम कर रहे हो, ऑडिट फेज वाइज लेवल में चल रही है, अगर आप जितनी कंप्लीट होती जा रही है काम उस हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो यू हैव टू गो विद द मेथड नंबर 1. हाउएवर जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा एंड देन यू हैव टू you have to record your revenue, then you will go with the second method, that is completed service contract method. So let's see what is written here. The recognition of revenue in the statement of profit and loss proportionately with degree of completion of services under a contract. Okay. Performance consists of execution of more than one act. Okay. Revenue is recognized proportionally by reference to the performance of each act.
तो वेरी सिंपल, जो आपका काम है उसमें एक से ज़्यादा काम होने हैं, और हम जब भी एक काम उसका कंप्लीट हो जाएगा वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. नेक्स्ट इज रेवेन्यू that is completed service method. As I said that performance consists of the execution of a single act, और जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाएगा, तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे. ओके, and in this again it should be recognized only when no significant uncertainty regarding amount of consideration exists. ठीक है, now let's just see about this chart. What are the items which are not included within the definition of revenue? तो अभी हमने देखा कि सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या कोई और ऐसा काम जिससे हमने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ किया और उससे इंटरेस्ट, डिविडेंड या कुछ और यील्ड कमाई, कोई रॉयल्टी कमाई, तो दैट इज रेवेन्यू. बट व्हाट इज नॉट रेवेन्यू? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस चार्ट वेरी वेरी केयरफुली एज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स की. अब कुछ अनरियलाइज्ड गेन्स होंगे, राइट? वी हैव बुक प्रॉफिट फॉर समथिंग विच वी हैव नॉट अर्नड येट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग. तो अनरियलाइज्ड गेन समझते हैं किन किन चीज़ों के. Unrealized gain resulting from restatement of the carrying amount of an obligation. मान दो मैंने कोई liability रिकॉर्ड कर रखी थी 50 लाख की, लेकिन now I got to know that I have to pay only 30 lakh. How will I adjust the remaining 20 lakh? I will have to book it in the revenue side of the P&L. So if there are any unrealized gain resulting from the reinstatement of the carrying amount of an obligation, it is not counted. सिमिलरली अगर मैं कोई नॉन करेंट एसेट होल्ड कर रही हूँ और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उसकी वैल्यू मैं कैसे बढ़ाऊँगी? वो 30 लाख का रखा हुआ था, वो 50 लाख का हो गया, तो दैट विल ऑल्सो गो टू P&L, बट विल इट बी अ पार्ट ऑफ माई रेवेन्यू? नो. ओके, नेक्स्ट इज अनरियलाइज्ड गेन, holding gains resulting from change of value of current assets and natural increase in herds and agriculture and forest produce. तो देखो, अब ये जो लाइव स्टॉक वाले आइटम है वो नेचुरली अपने आप बढ़ते रहते हैं, राइट? देयर आर हर्ड्स, देयर आर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दे कैन बी नेचुरली इंक्रीज. तो ये अगर बढ़ते हैं और इनकी वैल्यू बढ़ती है तो इनका भी जो गेन है वो आप रेवेन्यू में काउंट नहीं करेंगे. दे विल बी शोन इन द P&L ऑफ कोर्स, बट इट विल बी अदर इनकम, नॉट द P&L, नॉट द रेवेन्यू इनकम. ओके, ये 3 तरीके हमने गेन समझे. अब उसके अलावा 3 तरीके के हम रियलाइज्ड गेन समझते हैं. अब अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट को डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, नॉन करेंट एसेट था आपके पास मशीन थी, आपने जाके बेच दी, उससे आपको पैसे आए, वो आपके WTV से ज़्यादा है, सो यू हैव अ रियलाइज्ड गेन. Will you count it in the revenue? No, it is again a part of other income. Now, if there is a realized gain resulting from discharge of an obligation at less than carrying amount, will it be counted? No, again हमने realized gain जब हमने पेमेंट कर दी एक्चुअल, तो वो भी अगर कम करिए तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड हियर. नेक्स्ट इज realized or unrealized gains resulting from changes in the foreign exchange rates and adjustment due to translation of foreign currency financial statements. तो देखो, जो भी अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में ट्रांसलेट करने से या फिर उसे एडजस्टमेंट करने से अगर आपको कोई भी रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड गेन होता है, तो वो दोनों ही रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, it might be a part of income, but it will not be a part of revenue, right? So would you like to revise quickly? सबसे पहले अनरियलाइज्ड गेन किसको? अगर कोई लाइबिलिटी कम अमाउंट पर दिख रही है. अनरियलाइज्ड गेन अगर कोई नॉन कैरिंग एसेट, करेंट एसेट बढ़ गया है. अनरियलाइज्ड गेन अगर कोई एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक उनकी क्वांटिटी नेचुरली बढ़ गई है या फिर करेंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई है. रियलाइज्ड गेन अगर आपने एसेट बेचा. रियलाइज्ड गेन अगर आपने लाइबिलिटी कम सेटल कर दी. एंड रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन ऑफ फॉरेन exchange rates due to translation of foreign currency financial statements. Okay, now let's read this part. Use of enterprise resources by other parties. ये जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा है ना,
इसको हम और डिटेल में पढ़े क्योंकि हमने ये तो पढ़ा, ठीक है, ये भी पढ़ा. Now let's study this one also. So use of enterprise by others interest. तो मतलब बेसिकली हमारे कोई रिसोर्सेज हैं और वो कोई और यूज़ कर रहा है, तो अगर हम टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो रेवेन्यू. अगर हम राइट टू रिसीव पेमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो दैट इज़ डिविडेंड. एंड इफ वी हैव डन सम अक्रूवल बेसिस, सॉरी जस्ट फॉरगेट, अगर हमारे कोई रिसोर्सेज हैं वो हमारे कोई और जगह यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट बिहाफ, सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिकॉर्ड इट ऑन टाइम बेसिस. अगर हमें रॉयल्टी हमारा एग्रीमेंट है तो हम अक्रूवल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे. और अगर डिविडेंड हमें मिल रहा है तो हम जब हमारा राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा तब उसे रिकॉर्ड करेंगे. Now, when the ability to assess the ultimate collection with a reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, venue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. When the uncertainty relating to collectability arises subsequent to the time of sale or rendering of service, it is more appropriate to make a separate provision to reflect the uncertainty rather than to adjust the amount of revenue originally recorded. तो अगर आपने जब रिकॉर्ड करना है उस टाइम पे अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो तब आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यू शुड पोस्टपोन इट. एंड इफ अराइजेस लेटर देन यू शुड मेक अ प्रोविजन रेदर देन एडजस्टिंग द एक्चुअल रेवेन्यू. अच्छा, अब डिस्क्लोजर क्या करना होगा? डिस्क्लोजर बस एक ही करना होगा. एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द सर्कमस्टेंसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्निशन हैज बीन पोस्टपोन. ठीक है, कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं जिसकी वजह से आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दिया है. सो वेरी लिटिल बट वेरी इंपॉर्टेंट AS इज ओवर. Now let's see the previous year questions asked. So first is explain the term revenue. ठीक है, आप इसमें तीनों लिख दोगे क्या क्या इंक्लूड होते हैं. State the items not included in the term revenue. You will write this. When should the revenue of sale of goods be recognized? So we will write that this as well. We have read all the three. ठीक है, उसके बाद फिर another question is recognition of revenue presents two basic problems, mainly the timing and measurement. तो टाइमिंग जब अनसर्टेनिटी ना हो, मेजरमेंट कैसे करेंगे कि इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या आइटम नहीं आते. ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर द ओनली वंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम AS-9. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू गिव यू एन असाइनमेंट कि आप अपने एंड पे दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर अपने पास बना के रखें, जिससे इन फ्यूचर इफ इट गेट्स रिपीटेड तो इट विल बी इजी फॉर यू. And in case ऐसे similar question पूछा जाता है तो you will be having the content to write. That's it. I will cover the solutions of these two questions in the next video along with the next which will be our AS-10. Thank you so much.